اگر شام میں امن ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے خیر کی خبر ہے، اور اگر شام کے حالات خراب ہوئے تو سمجھ لینا یہ قیامت کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، کیونکہ شام میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، معصوم بچوں کی ساحلوں پر ملتی لاشیں، روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر اپنا جسم بیچتی عورتیں، اور نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار سعودی عرب فیشن شو اور عرب ریاستیں مندر بنانے، اور پاکستان جیسے ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، نہ اس کے جنرل صاحب کو خیال آیا اور نہ صدر اور وزیر اعظم کو غیرت نام کی کسی چیز نے جھنجھوڑا۔ انہیں فکر ہے تو صرف اپنی کرسی اور عہدے بچانے کی، اور دنیا کے اس جاہو جلال کے لیے ان مسلمانوں نے اپنے نبی سے بھی غداری کرتے ہوئے مشرکین سے ہاتھ ملا لیا۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان مشرکین سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ اور یہ سب کچھ عرب ممالک بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، شام مغربی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا اسلامی ملک ہے جس کا مکمل اور سرکاری نام الجمہوریۃ العربیۃ السوریہ ہے۔ اسے انگلش میں سیریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں عراق، مغرب میں بحر روم، شمال میں ترکی، جنوب میں اردن، جنوب مغرب میں اسرائیل، لبنان اور فلسطین کی سرحد واقع ہے۔ شام کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 87واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ شام 1,82,84,407 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا میں 63ویں نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے۔ اس کا پرچم سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی افقی پٹیوں پر مشتمل ہے جس میں ستارے بنے ہوئے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت دمشق ہے۔ دمشق شہر کو دنیا کے قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ شہر ہے جس میں دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے رہائش اختیار کی تھی، اور اسی شہر میں دنیا کے سب سے پہلے قتل کی روداد لکھی گئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل بھی اسی شہر میں کیا تھا۔ سرزمین شام پر بہت سی ازواج مطہرات، آل رسول اور عاشقان رسول کے مزارات موجود ہیں۔ دمشق شہر کے قریب واقع وادی درہ میں حضرت حبیب علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ دمشق شہر ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں 6 اور بھی ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ دمشق کے علاوہ حلب اور حما ساما ملک کے بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ شام پاکستان سے 2873 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ شام کی کرنسی کو سیرین پاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ایک سیرین پاؤنڈ کے پاکستانی 0.275 روپے بنتے ہیں، یعنی کہ ایک پاکستانی روپے کے 3.635 سیرین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ شام کے زیادہ تر لوگ دریائے فرات، سہل سمندر اور پہاڑوں کے درمیانی زرخیز زمینی پٹی میں آباد ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی آبادی کی کثافت 99 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ 2008 میں ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 18 لاکھ کے قریب پناہ گزین ملک میں رہائش پذیر تھے، جن میں سب سے زیادہ تعداد فلسطینی اور صومالی پناہ گزینوں کی تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام انسانی پناہ گزینوں کی سب سے بڑی سرزمین تھی، لیکن 2011 کی جنگ کے بعد ملک کے 90 لاکھ سے زیادہ آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ شام میں سب سے زیادہ عربی نسل کے لوگ رہائش پذیر ہیں، جبکہ دوسرا بڑا نسلی گروہ کرد ہے، جو کل آبادی کا 9 سے 10% ہے۔ اس کے علاوہ البانوی، بوسنین، جارجین، یونانی اور آرمینی نسل کے لوگ بھی آباد ہیں۔ شام دنیا میں 7واں سب سے بڑا آرمینی آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ شامی باشندے شام سے باہر سب سے زیادہ برازیل میں آباد ہیں۔ برازیل امریکہ میں پہلا ملک ہے جس نے پناہ گزینوں کو رہائش دینے کی پیشکش کی ہے۔ شام کی 74% آبادی مسلمان ہے، جن میں 60% سنی اور باقی شیعہ مسلمان ہیں۔
दीगर मजहबी अकायद में ईसाइयत, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और दोरोजी शामिल हैं। शामी सदर बशार अल असद को ना तो सुन्नी मुसलमान मानते हैं और ना ही शिया मुसलमान शिया तस्लीम करते हैं। इसका ताल्लुक एक आदियानी तर्ज अकायद के फ़िक़ा से है। अरबी मुल्क की सरकारी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, जो रोज़मर्रा के तमाम शोबों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मुल्क में कुर्दिश, आर्मीनी, तुर्की, सर्सियान, चेचनिया और यूनानी भी बोली जाती है, लेकिन इन्हें कोई भी सरकारी हैसियत हासिल नहीं है। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान को मुल्क की दूसरी बड़ी ज़ुबान होने का दर्जा हासिल है। शाम में 6 साल की उम्र से तालीम लाजमी करार दी गई है। मुल्क में बुनियादी तालीम के अलावा साइंसी और कारोबारी शोबे में तालीम फराहम करने वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां कायम हैं। शाम में 6 सरकारी और 15 निजी यूनिवर्सिटियां हैं। मुल्क में 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की शराखानदगी मर्दों में 90.7% और औरतों में 82.2% है। 2010 तक शाम सेहत की देखभाल के लिए अपनी जीडीपी का 3.4% खर्च करने वाला मुल्क था। 2008 तक मुल्क में 10,000 अफराद के लिए 14 यूनानी और जुनूब मगरबी एशिया के खानों की रिवायात नजर आती हैं, लेकिन मुल्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो फ्रांसीसी खानों के दिलदादा हैं। शहद, गिरी मेवे से बना हलवा यहाँ के लोगों की पसंदीदा खुराक है। दीगर खानों में गोश्त, पनीर को भी काफी पसंद किया जाता है। सुबह के नाश्ते में सफेद काफी और रात के खाने में शराब को पसंद करने वाले बाशिंदे भी मौजूद हैं। दमिश्क और हलब मुल्क के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सीरियन एयरलाइन मुल्क की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन है। शाम में रेलवे ट्रैक का निज़ाम भी मौजूद है, जिसे सूरिया रेलवे कंपनी हैंडल करती है, लेकिन 2011 की सिविल वार के बाद रेलवे निज़ाम की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मुल्क में 69,837 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क भी मौजूद है, जिसमें 1103 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज भी हैं, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की वजह से सड़कों और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह खराब हो चुका है। दुनिया में मशहूर हैं। शाम में पाया जाने वाला स्टील अपनी मुनफरिद और आला क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यहाँ का स्टील तलवारों और चाकुओं में इस्तेमाल किया जाता है। 2011 से पहले शाम गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज था, लेकिन मौजूदा जंगी हालात की वजह से सियाहत के शोबे में 75% कमी वाक़ हुई है, जिस वजह से मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ और इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी की शरह 50% से भी ज्यादा है। शाम का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मुमालिक में होता है। गुजरे वक्त में यह खित्ता ज़मीन अमूरी, इरामी, फ़ोनकी और यहूदी अक़वाम की अमाजगाह रह चुका है। सदियों तक इस सरजमीन पर असीरी, मिस्री और ईरानी काबजीन ने अपना मस्कन बनाए रखा। 331 कबले मसीह में सिकंदर आज़म ने इस पर कब्जा किया। रूमी सल्तनत के तकसीम के बाद शाम मशरक़ी रोम का हिस्सा बना। 7वीं सदी ईस्वी में अरबों ने सल्तनत पर इस्लाम का झंडा लहराया और यह सरजमीन इस्लाम का गहवारा बनी। 11वीं सदी ईस्वी में तुर्क सल्जोक हमला आवर मुसल्लत हुए। शाम 1516 से 1918 तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 1920 में एक मुआहदे के तहत शाम को फ्रांस के ज़ेरे कंट्रोल दे दिया गया। 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया और फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और मौजूदा लबनान, जो उस वक्त शाम का हिस्सा हुआ करता था, इसे शाम से अलहदा कर दिया। 1944 में शाम ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। 1958 में मिस्र और शाम के यकजहती की बदौलत मुत्तहिदा अरब जमहूरिया का क़याम अमल में आया। 1961 में फौजी बगावत की वजह से फौज ने मुत्तहिदा अरब जमहूरिया से अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया और 1966 में फौजी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 1967 में शाम इसराइल जंग में शाम को इसराइल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल ने मुल्क के जनूब मगरब में वाक़े गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1971 में जनरल हाफिज अल असद मुल्क के सदर मुंतखब हुए।
और सन 2000 तक मुल्क के सदर का ओहदा संभाले रखा। सन 2000 में हाफिज अल असद की वफात के बाद उनका बेटा बशार अल असद मुल्क के सदर मुंतखब हुए, जो सन 2000 से अब तक मुल्क के सदर हैं। हाफिज अल असद और उनके बेटे बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कई बार एहतजाज किया गया और इन एहतजाज करने वालों को बागी करार देकर हुकूमती फौज ने इस बगावत को कुचल कर रख दिया। सन 2000 में शाम की तरफ से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया, जिस पर इसराइल को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, जिसकी वजह से इसराइल के नाजायज बाप अमेरिका ने सन 2004 में शाम पर इक्तसादी पाबंदियां ऐद कर दी। बशार अल असद की हुकूमत को गिराने और डेमोक्रेसी लाने के लिए एक बार फिर मुल्कगीर एहतजाज शुरू हुआ। 2011 में एक पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बशार अल असद के हुक्म पर गोलियां बरसाई गईं, जिसके नतीजे में इन एहतजाज करने वालों ने हथियार उठा लिए और हुकूमती फौज भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जो फौज और दूसरे हथियार उठाने वाले बशार अल असद के खिलाफ खड़े हुए, इन्हें बागी करार दे दिया गया और फिर देखते ही देखते इस लड़ाई ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क में सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से सुन्नी मुसलमान बशार अल असद की शिया हुकूमत को ख़त्म करके डेमोक्रेसी चाहते थे, जबकि दूसरी जानब यह सरजमीन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी क़यामत करबला का एक बाब भी है। इसलिए यह सल्तनत शिया मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझी जाती है। हर साल यहाँ पर दीगर मुमालिक से शिया मुसलमान लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद मज़ारात की ज़ियारत के लिए आते हैं। इसीलिए ईरानी हुकूमत किसी भी सूरत बशार अल असद की हुकूमत को गिरते हुए नहीं देख सकती। इसी वजह से ईरान हर तरह से बशार अल असद की भरपूर मदद करता है। दूसरी जानब रूस जैसी कुव्वतें दुनिया में अपना रोब जमाने के लिए बशार अल असद के साथ खड़ी हैं, लेकिन अगर शाम की मजलूम अवाम के साथ शाना बशाना अगर कोई खड़ा है तो वो तुर्की है, जो इन मजलूमों से मिलकर शामी हुकूमत के खिलाफ मैदान जंग में मौजूद है। इस वक्त सरबराह और कमांडर भी हैं। मुल्की फौज 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मर्दों को 18 साल की उम्र के बाद फौज में भर्ती होने की इजाज़त दी जाती है। शाम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क का डोमेन नेम .sy और कॉलिंग कोड +963 है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दिया करें। मैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।